Geographical indication is a sign used on products that have a specific geographical origin and possess qualities or a reputation due to that origin. GI enables a GI holder to use the indication for preventing its use by a third party whose products do not conform to the applicable standards. However, the protected geographical indication does not enable the holder to prevent someone from making a product using the same techniques as those set out in the standards for that indication. Punjab has received the GI for its Fulkari work done in the regions of Patiala, Rajpura, Tripura, Sirhind, and many more. And to know more about the art of Fulkari, we went to the royal city of Patiala. The first step towards getting Fulkari embroidered over a cloth is to get the printing of the Fulkari pattern done over an uncolored or dyed cloth. This printing is done by hand, and the money that the artisans receive depends upon how exhaustive the printing is. So, for example, for Bagh Fulkari, the artisan might receive 70 rupees, but for printing only on the borders, they might receive 30 rupees a piece. After printing, the cloth is then passed on to the ladies who do the thread work over the ink. Here again, the price depends upon how extensive and clean the embroidery is. We also asked the artisans about how the computerized Fulkari manufacturing machines have affected their livelihood. नहीं हमें तो वैसे काम आ रहा है लेकिन वो रेट नहीं मिल रहा जो हम लेना चाहते हैं उनसे क्योंकि बाजार 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਦੇ ਇਹਦਾ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂ ਅਗਲਾ ਦੂਜਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਹਾਂ ਇਸੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਥੋੜਾ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦੁਪੱਟੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਰੇਟ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਰੇਟ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ After looking at how the Fulkari is made, let us now look at how it is sold. एग्जेम्प्टेड आइटम है उसमें जीएसटी नहीं अच्छा कोई जीएसटी नहीं है क्योंकि इंडियन फैब्रिक है इसके ऊपर हाथ का काम पहले बनता है सबसे स्टार्टिंग जहाँ से कह सकते हैं फुलकारी की यहाँ से हुई खद्दर के हाथ का काम देख लीजिए आप भरा हुआ काम करते थे पहले उसके बाद डिमांड इसको वेयर नहीं कर सकते बहुत भारी है भारी हाँ भारी है किसी काम को कॉटन ये चीज़ कॉटन में क्योंकि दिखने में आपको सेम ही लगेगा लेकिन ये फैब्रिक चेंज हो गया फिर इस पे काम हुआ फिर जो जिनके पास वो था ना जो बाहर चले जाते थे ये थक गए हम भी थक गए बेच के ये चीज़ें ठीक है फिर हमने ये कपड़े पे पुराना काम शुरू किया आपको लास्ट 3 इयर्स की बात 2250 आप बाहर बहुत जाने लगे ठीक है कैनेडा वगैरह में जाने लगे जब एक बार अपनी कंट्री को छोड़ के बाहर जाने लगे ना तो उनमें इसकी डिमांड बढ़ गई अपने ट्रेडिशन की अगर आप यहाँ रहोगे जैसे आप हरिद्वार में रहते हो तो गंगा में आओगे एक दिन जाओगे तो नहा के आओगे तब इसलिए वो डिमांड बढ़ गई और उनके पास पैसे बहुत थे तो रॉयल चीज़ उन पैसे उससे महंगा कुछ है नहीं हम बना नहीं सकते उनके लिए अपने ट्रेडिशन को रखना तो उन्होंने एक्चुअली बचाया होगा अगर वो बाहर चले गए क्योंकि हम तभी बनाएंगे ये चीज़ें अगर हमारी सेल होंगी ठीक है और इतनी जो इसको खरीदने की पावर है वो उनकी बात है जिनके पास पैसा है और यहाँ के बंदे रोज़ रोज़ ये चीज़ें दे रहे हैं तो आप लोग आए हैं आप यहाँ से लेके जाएंगे कुछ ना कुछ गिफ्ट हम यहाँ पे कितना गए हम जैसों के लिए वो सेक्शन बने हैं सारे ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूँ हमने इसमें इम्प्रोवाइजेशन क्या थे ये हमने जैसे आपको ये येलो दुपट्टा मैंने दिखाया ना ये रेड दुपट्टा ही लेनी सेम डिज़ाइन है अब इसमें थोड़ा पीछे हुआ ये हम अपना डिज़ाइन रेडी करते हैं यहाँ पे हर शॉपकीपर के पास अपना मतलब डिज़ाइन होता है हर अपना का दिमाग है ये सब काम कर रहा है ये छोटा है ये पत्ती तो आपने फुलकारी को मोटा पत्ती को मिक्स करके कुछ ना कुछ काफ़ी चीज़ें करते रहते हैं कभी मिरर वर्क सब चीज़ें की हैं मैं आपको एक आइटम सबकी दिखा देता हूँ क्या क्या हमने किया है हर शॉप से अपना अलग इसका क्या रेंज है इसका रेंज मैम डिज़ाइन फैब्रिक और वो काम के ऊपर डिपेंड होता है वैसे ये पर्टिकुलर पीस का रेंज 5000
5,000. आपको श्री बाग सबसे मशहूर, सबसे महंगा और सबसे रॉयल चीज़ है। इसमें आपको बिल्कुल भी आप 1% की ये नहीं बता सकते नीचे वाले दुपट्टे का कलर क्या है, जब तक आप पीछे से इसको ठीक है। फुल एम्ब्रॉयडेड है ये, दुपट्टे का मतलब होता है इस गप्पी को बोलते हैं, हाँ बिल्कुल भरा हुआ काम, संगना बोलते हैं पंजाबी में। इसमें आपको अलग अलग कलर्स मिल जाएंगे और ये बनता है 3 महीने में एक, 4 महीने में एक। सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और सबसे ज़्यादा महंगा 3 महीने में एक। और क्या रेंज में रहता है ये परांठा वाला? ये सब भी इस फैब्रिक के इस पे डिपेंड है। जैसे अगर इस फैब्रिक पे रेडी हुआ तो 5,000 से ऊपर रेट जो चिनाउन अब इस टाइम पहले ये 3-35 से स्टार्ट हो गया था। जैसे जैसे महंगाई भी बढ़ रही है, टैक्स भी बढ़ गया, इनके रेट भी बढ़ गए, ठीक है, वो डिमांड भी बढ़ गई, इसके हिसाब से रेट बढ़ता जा रहा है 5,500 तक पहुँच गया, ठीक है। इसी बात की कॉपी अब मशीन में होने लगी है, 900 से स्टार्ट हो, 9 या 500 से स्टार्ट हो। मैं आपको 1-2 पीस अब आपके लिए पहली मतलब आपने फर्स्ट टाइम शायद देखी होगी फुलकारी की नॉलेज में इतनी है, आपके लिए पता लगाना दोनों में डिफरेंस क्या है बहुत मुश्किल होगा एक्चुअली। ठीक है। ये मशीन मेड है और इसका रेट है 1400 चेंज हो गया। पहले मशीन का काम होता था ना, जो पहले मशीन स्टार्टिंग रही थी वैसे ही काम करती थी, दिखा ना हाँ कंचुला खुद ने बनाया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दुपट्टा दिखाया था, पहले मशीन ये करती थी। जैसे जैसे फुलकारी का डिमांड बढ़ गई तो ऐसी मशीन्स लगी जो बिल्कुल डिट्टो चीज़ बना देती हैं, ठीक है। इसीलिए ना इन लोगों ये जो हाथ का काम करने वाले हैं इसीलिए अभी तो थोड़े से मतलब कम रेट में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी डिमांड को ना इसने लोगों की डिमांड को इसने कम कर दिया मशीन में। In the market, we also learned that the Fulkari embroidery is done not only on suits and dupattas, but also on bags, envelopes, bed sheets, cushion covers, and jutti. तो फुलकारी जैसे यहाँ पे जुतियों में भी काम होता है, ये कितने का अप्रॉक्स पड़ जाता है आप लोग कराते हुए? ये तो बुनी इसके काम के ऊपर है। हाँ जी। जैसे मतलब कारीगर कढ़ाई करने से पहले इसको ना मतलब कपड़े को अड्डे के ऊपर सेट करता है, फिर इसको ट्रेस करता है जैसा उसने डिज़ाइन तैयार करना होता है, फिर इसको हैंडवर्क से ना इस धागे के साथ ना इसको कंप्लीट करता है। तो फुलकारी का जो जुतियों का काम है हमेशा से ट्रेडिशनल है कि अभी शुरू हुआ है? नहीं जी नहीं, ये बहुत पुराना ट्रेंड है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। जैसे पटियाले के अंदर फुलकारी दुपट्टा है, फुलकारी सूट है, उसके साथ फुलकारी जुत्ती भी तैयार है। अच्छा, और मतलब आप लोग इसमें कितना प्रॉफिट पड़ जाता है? कुछ प्रॉफिट ज़्यादा की बात तो ऐसे है कि देखो इसमें कारीगर की भी लेबर है, मेहनत भी होती है, आगे फिर बनाने वाला भी लेता है, लेदर का भी सामान लगता है इसमें, तो खर्चा काफ़ी आ जाता है मैडम इसमें। और क्या कहते हैं आप लोग के कारीगर जो होते हैं वो रिजर्व्ड होते हैं कि हाँ आप? जी, कारीगर हमारे पक्के होते हैं हाँ जी, जी। मतलब जैसे उनको काम दिया जाता है उसके हिसाब से उनको जुत्ती के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। अच्छा, पर और मटीरियल हमारा अपना होता है। अच्छा जी, और हर कढ़ाई हर अलग अलग टाइप की जुत्ती का अलग अलग प्राइस कढ़ाई के साथ? हाँ जी हाँ, कढ़ाई के साथ जैसे डिजाइनिंग कई बार कोई बुरीक ज़्यादा ही काम आ जाता है, उसकी लेबर ज़्यादा पड़ जाती है, उसको बनाना भी ध्यान से पड़ता है, सारा कुछ उसके अंदर हिसाब किताब लगा के फिर कारीगर को। Fulkari is a dying art, as it is only appreciated by the people who are away from home. The machines have rendered the craftswomen with no agency to negotiate the price for their skills. Some things are worth being expensive. It's not always about the best price, but maintaining and developing our heritage and culture. And if we let that art die, we are losing a lot more than just money.